this lecture today we will learn about TLC. TLC, that is thin layer chromatography. Thin layer chromatography. Now, thin layer chromatography or TLC is basically a method for analyzing mixtures by separating the compounds in a mixture. In this technique, there's a stationary phase. Okay, that stationary phase is a finely divided solid adsorbent which is spread on a rigid supporting plate, so that आपने देखा होगा कि वो जो लेयर है सॉलिड की, we layer it, hence why the name layer. We layer that solid over a supporting plate. ठीक है, this is how we do the layering. ऐसे करके पूरे उस पर. So this finely divided solid adsorbent is spread on a rigid supporting plate, and mobile phase is there. Secondly, there will be mobile phase which is obviously a liquid, और जो भी आपका sample रहेगा containing a mixture of compounds. Then the mobile phase is allowed to travel across the surface of the plate. This mobile phase will travel across this plate, and the separation of compound present in a mixture, इसका separation होगा. अगर आपने TLC की plate कभी लगाई है, you would know something like this or this. The peaks will come, and the separation of the compound will be done, or the separation of compound present in a mixture will occur due to the difference of what? Difference in the affinity of individual compounds for adsorbent and mobile phase. बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो सैंपल रहेगा, जैसे मान लो मेरा एक सैंपल है जिसमें 2 कंपाउंड्स एल्यूट होंगे या 3 कंपाउंड्स A B और C. तो ये क्यों एल्यूट होंगे? एफिनिटी के कारण. एफिनिटी बोले तो कि किसी में, लो ये वर्ड ही मिट गया, किसी में एफिनिटी जो है, किसी की एफिनिटी मोबाइल फेस या एड्जॉर्बेंट के लिए ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, अगर एड्जॉर्बेंट जैसे स्टेशनरी फेस है उसके लिए ज़्यादा हुई तो वो मोबाइल फेस के साथ धीरे धीरे एल्यूट होगा, और किसी की कम रही तो वो जल्दी से एल्यूट हो जाएगा. लाइक दैट. सो TLC कैन बी यूज्ड to for number of reasons. They said TLC can be used to determine what? It can determine number of compounds that are present in a mixture, and secondly it can be used to identify a compound matching with standard in comparison with a standard, and lastly it can be used to determine the purity of a compound. What other thing it can be used for is, very interestingly, it is used to monitor the progress of a reaction. It can be used to monitor the progress of a reaction. कैसे प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे रिएक्शन की? बाय ऑब्जर्विंग 2 चीज़ें. ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे क्या ऐसा हुआ कि कोई प्रोडक्ट का अपीयरेंस आया. बेसिकली क्या ऐसा हुआ कि कोई प्रोडक्ट का
अपीयरेंस आया, या फिर वही प्रोडक्ट कोई दूसरे प्रोडक्ट का डिसअपियरेंस हो गया। एक रिएक्शन में क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है या कोई पुराना चला जाता है। सो दैट इज व्हाट विल disappearance of a reactant, appearance of a product, okay, sorry, my mistake, appearance of a product or disappearance of a reactant. Okay, so it is a very sensitive technique because it can be used to analyze quantities that can be as small as a microgram or 0.00001 gram, and that too in a disappearance in a like time of 5 to 10 minutes. So TLC consists of 3 steps. ठीक है, TLC consists of 3 steps. क्या है वो 3 steps? फर्स्ट इज spotting, developing and visualization. तो दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला हम बात करेंगे स्पॉटिंग की। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट द सैंपल टू बी एनालाइज्ड इज डिजॉल्व इन अ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है, जैसे ये हमारा सैंपल है, सैंपल ए, इसको हम डिजॉल्व कर देंगे किसमें, एक वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन समथिंग दैट कैन बी इजीली इवेपोरेटेड। वॉलेटाइल सॉल्वेंट में इसको बेसिकली हम डिजॉल्व कर देंगे। ओके, टू प्रोड्यूस अ वेरी डाइल्यूट दैट इज अबाउट 1% सोल्यूशन। तो इससे क्या होगा, एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। देन स्पॉटिंग कंसिस्ट ऑफ यूजिंग अ माइक्रोपिपेट और कैपिलरी। स्कूल में व्हेन वी यूज टू डू TLC, इन ऑर्डर टू स्पॉट वी यूज टू लाइक, ये कैपिलरी एक, ठीक है, बहुत बारीक सी कैपिलरी रहती थी, आप सबने देखी होगी। वी यूज टू कीप इट ऑन द फ्लेम, और फ्लेम से वी यूज टू सेपरेट इट इन दीज 2 डायरेक्शन विद द यूज ऑफ हैंड। सो इसको लेफ्ट और राइट की तरफ खींचते थे, तो यहाँ से वो पिघल कर ऐसे टूट जाती थी, एंड इट यूज टू बिकम लाइक दिस, ऐसे, मतलब यहाँ से वो क्लोज हो जाती थी और एक एंड से ऑब्वियसली ओपन रहती थी। तो स्पॉटिंग के लिए इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग अ माइक्रोपिपेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, माइक्रोपिपेट्स भी आती हैं, एंड यू कैन यूज कैपिलरीज एज वेल टू ट्रांसफ़र दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल। सो इनका यूज़ कहाँ आता था, ट्रांसफ़र करने में सैम्पल का, ट्रांसफ़र द स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल डाइल्यूट सोल्यूशन बेसिकली। तो ये सैम्पल क्या बन गया था हमारा, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम एक एंड ऑफ द TLC प्लेट पे। टू ट्रांसफ़र दिस डाइल्यूट सोल्यूशन टू one end of a TLC plate consisting of thin layer of powdered silica gel that has been coated onto a plastic sheet or a glass plate. So ये plastic sheet होगी, या फिर जनरली ग्लास प्लेट यूज़ करी जाती है बहुत सारी जगहों पर। तो दिस इज़ थिन, कोटिंग करी जाएगी थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल की, और उसके एक कोने पे हम यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा लाइन मार्क करेंगे, उसके एक पे स्पॉट कर देंगे। तो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिलरी। The spotting solvent quickly evaporates and leaves behind a small spot of material. तो इसमें जो ये सॉल्वेंट मिला था, क्योंकि ये वॉलेटाइल था, ये कुछ देर बाद इवेपोरेट हो जाएगा
and it will leave behind a small spot. As you can see here, we can make it of a different color, small spot of material. Now comes the next step, that is development. इसमें क्या होगा? Development consists of placing the bottom of the TLC plate into a shallow pool of development solvent. ये जो TLC plate है, हम क्या करेंगे? We will take a beaker of some sort. इसके अंदर ये होगा हमारा development solvent, and we will dip this plate into this beaker such that कि ये पूरा कवर भी नहीं होना चाहिए, ओके, सच दैट ये पूरा कवर भी नहीं होना चाहिए, जस्ट दैट कि जो भी डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द बॉटम ऑफ द TLC प्लेट into a shallow pool of development solvent, which then travels up the plate. This developing solvent will travel up the TLC plate by what? By capillary action. As the solvent travels up the plate, it moves over the original spot. तो ये इसके ऊपर से गुजरता हुआ भी जाएगा, ये developing solvent, right? A competition is set up between the silica gel plate and the development solvent for the spotted material. Now this spotted material is what? Basically this spotted material is nothing but it was originally your diluted solvent, जिसमें से उसका सॉल्वेंट वेपराइज हो गया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट. अब ये आपका सैंपल है, ठीक है. सैंपल के पीछे योर डेवलपमेंट सॉल्वेंट, दैट इज योर मोबाइल फेस, एंड द सिलिका जेल प्लेट, दैट इज योर स्टेशनरी फेस का कंपटीशन होगा. सो कंपटीशन इज सेट अप बिटवीन the stationary face and the mobile face for the spotted material, that is your sample. So silica gel obviously polar है nature में, it is polar in nature, and what will happen that the polar silica gel then tries to hold the spot in its original place, and the solvent tries to move the spot along with it as it travels up the plate. तो ये मेरी प्लेट है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई स्पॉट. इसमें पूरे में क्या है? सिलिका जेल है. इसे हमने किस में रखा था? एक डेवलपिंग सॉल्वेंट में. ये डेवलपिंग सॉल्वेंट हमारा मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, दिस इज़ दी सैम्पल. एंड व्हाट विल हैपन, इन दोनों के बीच में जब रेस होगी तो सिलिका जेल चाहेगा कि ये स्पॉट यहीं रहे जहाँ पे ये है, और डेवलपिंग सॉल्वेंट जैसे जैसे कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाएगा वो चाहेगा कि डेवलपिंग स्पॉट मोबाइल फेस के साथ ऊपर जाए. सो द पोलर सिलिका जेल ट्राइज टू होल्ड द स्पॉट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड द सॉल्वेंट ट्राइज टू मूव द स्पॉट अलॉन्ग विद इट एज इट ट्रैवल्स अप द प्लेट. और इसका आउटकम क्या होगा? द आउटकम जो भी आएगा डिपेंड्स ऑन दी balance among three polarities: the plate, the development solvent and the spot material. तो इन तीनों की 1, 2 and 3, the polarities of these three of 1, 2, 3, that is silica gel stationary phase, developing solvent mobile phase and the sample. So whatever will be the outcome, it depends upon a balance. इन तीनों का balance होगा polarities का, that of the plate, development solvent, spot material. If the development solvent is polar enough, the spot will move some distance from its original location. ठीक है. अगर तो वो इतना पोलर इनफ होगा तो वो स्पॉट को आगे ले जाएगा. Then different components in the original spot.
having different polarities will move different distances from the original spot location shown up as separate spots. So कभी भी TLC plate देखी हो तो after the experiment is done we see कि यहाँ का जो original spot था वो धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे layers पे आता जा रहा है, अलग अलग layers पे. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो स्पॉट था, जो सैम्पल था, है ना, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे. सैम्पल ऑलवेज एक कंपोनेंट का तो होगा नहीं, सैम्पल में एक से अधिक कंपोनेंट्स होंगे. मान लो 3 कंपोनेंट्स थे A B C. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द ओरिजिनल स्पॉट की पोलैरिटी भी डिफरेंट होगी, इसीलिए वो अलग अलग डिस्टेंस पे जाके एलूट आउट होगा, यानी हमें दिखने लगेगा. And these separate spots will then be visible to us. So when the solvent has traveled almost up to the top, यहाँ तक वो travel कर चुका है, almost to the top of the plate is removed and the solvent front marked with a pencil and the solvent allowed to evaporate. ठीक है, solvent कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, solvent रन होके यहाँ तक गया, तो that solvent front is marked with a pencil. अब पेन से क्यों नहीं करते ये आप कमेंट में बताना. एंड द सॉल्वेंट इज अलाउड टू इवेपोरेट. सो हम थोड़ा इस प्लेट को ड्राई होने के लिए रख देते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप आती है, थर्ड इज विजुअलाइजेशन. So visualization of the colored compounds is simple that the spots can be directly observed after the development. अगर ये मुझे ब्राउनिश, ग्रीनिश और येलोइश कलर में दिख रहे हैं, so I can easily identify कि एक स्पॉट यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, मैं यहाँ मार्क करती जाऊँगी. बट क्योंकि कुछ कंपाउंड्स जब सेपरेट होते हैं या कुछ कंपाउंड्स नेचुरली कलरलेस होते हैं, तो कलरलेस कंपाउंड्स के लिए विजुअलाइजेशन, कलर कंपाउंड्स तो हम नेकेड आई से कर सकते हैं, कलरलेस के लिए विजुअलाइजेशन मेथड चाहिए रहता है. और सिलिका जेल TLC प्लेट पर अगर है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ एलूट आउट हुई है, तो हम उसे देख सकते हैं UV लाइट में. ठीक है, ये कलरलेस कब, ऑन अ कंडीशन दैट इट इज द TLC प्लेज इम्प्रेग्नेटेड विद अ फ्लोरोसेंट color or fluorescent material, then you can visualize the plate under UV light, ultraviolet light, UV visible. Oh sorry, UV only, not visible. So a spot will interfere with the fluorescence and appear as a dark spot on glowing background, while under the, तो यहाँ पे ग्लोइंग बैकग्राउंड में डार्क स्पॉट लगेगा, बट अगर आप उसको UV के लाइट में रखेंगे, सो देन द स्पॉट्स कैन बी आउटलाइंड विद अ पेंसिल टू मार्क देयर लोकेशन. UV लाइट के अंदर रखा आपने, ठीक है, एक UV बॉक्स टाइप का रहता है. यू हैव हैंडल्स टू कीप द प्लेट इनसाइड, देन यू स्विच इट ऑन दैट पर्टिकुलर नैनोमीटर, ठीक है, UV रेंज में. एंड व्हेन यू विजुअलाइज दिस प्लेट अंडर द UV लाइट, बहुत रफ डायग्राम है, आपको कुछ रंग बिरंगे स्पॉट्स दिखेंगे प्लेट पे एट सम डिस्टेंसेस. तो आप उसको यहाँ पे 2 वो रहते हैं स्पेस हाथ मूवमेंट के लिए, तो आप उसको पेंसिल से वहाँ पे ऐसे मार्क कर दो, तो केवल UV लाइट में दिखेंगे. जब आप बाहर निकालोगे तो आपको पेंसिल के मार्क्स दिखेंगे, स्पॉट्स नहीं दिखेंगे. A second method for visualization is accompanied by placing the plate into iodine vapors for a few minutes. ठीक है, तो हम उसको फर्स्ट मेथड क्या हुआ, UV लाइट. सेकेंड मेथड क्या हुआ, आयोडीन वेपर्स फॉर फ्यू मिनट्स. और उसमें क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक डार्क कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे आयोडीन वेपर्स के साथ. तो दिस इज़ गुड फॉर, हमने UV लाइट बात करी थी फ्लोरोसेंट मटेरियल्स के लिए, हम आयोडीन वेपर्स की बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनको आयोडीन वेपर लगने के बाद एक डार्क कलर का कलर चढ़ जाएगा.
dark colored complex will be formed. It is good practice to use at least two visualization technique in case a compound doesn't show up with one particular method. ठीक है. So the RF value is used to quantify the movement of material along the plate. RF is equals to the distance traveled by retention factors, distance traveled by the substance or your sample to the distance traveled by the solvent, that is your mobile phase. तो इससे you can use to quantify the movements of material along the plate. So its value is always like, अगर मैं बात करूँ कि if I am अमाइनो एसिड या कोई भी कंपाउंड है उसकी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई वेदर दिस कंपाउंड इज क्लोरोफिल और नॉट, या दिस कंपाउंड इज अमाइनो एसिड और नॉट, और एल्केन और नॉट, और वट एवर इट इज. तो वॉट आई विल यूज इज आई विल टेक माई सैम्पल प्लेट और उसके अगेंस्ट में एक स्टैंडर्ड प्लेट लगाऊंगी और इनकी वैल्यूज फिक्स रहती. तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज आइडेंटिफिकेशन टेक्निक कि हाँ, अगर मेरा यहाँ से इतने इतने वैल्यू पे आ रहा है, मान लो 0.5 पे मेरा इसका कंपाउंड का आ रहा है और स्टैंडर्ड का भी 0.5 पे आ रहा है, इट मीन्स बोथ दी सैम्पल्स आर सिमिलर. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि RF वैल्यूज जो होती है हमेशा 0 to 1 के बीच में आती है, नेवर अबव और बिलो दिस. सो अ TLC एनालिसिस माइट बी समराइज समथिंग लाइक कि यूजिंग अ सिलिका जेल प्लेट and ethyl acetate as development solvent. Unknown mixture X showed 3 spots having RFs of 0.12, 0.25 and 0.87 comparative. Comparing these RFs with the RFs of known compound might enable a tentative identification to be made. इसको मैं स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूँ और उसकी भी सेम वैल्यूज आए तो मतलब कि आई कैन सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई इट. So it should be observed that 3 spots mean only there are at least 3 components in the mixture. Some components may have similar polarities that they appear under one spot after the development. So ऐसा भी कई बार हो सकता है. Now selection of mobile phase, जैसे कि यहाँ पे बात की उन्होंने एग्जाम्पल में कि उन्होंने मोबाइल फेस लिया इथाइल एसिटेट. अब the selection of mobile phase is important. If a development solvent of too high a polarity is used, all components in the mixture will move along with the solvent and no separation will occur. तो हमने क्या बोला कि जो ज़्यादा पोलार होता है वो अपने साथ, जैसे सैम्पल मेरा पोलार है और मेरा सॉल्वेंट भी पोलार है तो वो उसको अपने साथ ले जाएगा. सो अगर मैं इतना पोलार सॉल्वेंट यूज़ कर लूँ कि पता चला मेरा जो मार्किंग्स है दैट डज नॉट इट डिडंट शो अप ऑन दी TLC प्लेट, इट वाज एलूटेड आउट विद द सॉल्वेंट. ठीक है, सो it moved along with the solvent and no separation will be observed. So then आपका RF value बहुत ज़्यादा आएगा. ठीक है, if the solvent is too low of a polarity the component will not move enough and again the separation will be not there. So हमें मोबाइल फेस का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है. वाई? इन ऑर्डर फॉर द सैम्पल टू बी सेपरेटेड नाइसली, या फिर इल्यूशन उसका अच्छे से हो इसीलिए. अगर वो कम पोलार, ज़्यादा पोलार है तो भग जाएगा और कम पोलार है तो देन इट विल बी, जैसे यहाँ स्पॉट है इतना सही एलूट हुआ, RF वैल्यू विल बी वेरी लो और सेपरेशन उतना अच्छा नहीं आ पाएगा. In practice, we use different solvents or mixtures of solvents are used until a good separation is observed. Typically, an effective solvent is one that gives RFs in the range of 0.3 to 0.7. ठीक है, ये एक अच्छा मोबाइल फेस या सॉल्वेंट का सिलेक्शन कहलाता है अगर आपका रिटेंशन फैक्टर 0.3 0.7 के बीच में आ रहा है. सो spotting solvent is simply used as a vehicle to transfer the material to be analyzed on the TLC plate. अगर मैं एक लीफ का component ले रही हूँ, ठीक है, आई एम आइडेंटिफाइंग वेदर इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट और व्हाट काइंड ऑफ components it has.
मैं पत्ती तो अपनी टीएलसी प्लेट पे नहीं रख सकती ना, उसका एक मिक्सचर बना के मुझे टीएलसी पे स्पॉट करना पड़ेगा. तो दैट स्पॉटिंग सॉल्वेंट इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ वॉलेटाइल, और स्पॉट करने के बाद वो उड़ जाएगा थोड़े से सेकेंड्स या मिनट्स की देरी में. एंड इट इज़ ओनली यूज एज अ व्हीकल टू ट्रांसफर द material to be used on the plate, material to be analyzed on the plate. So once the transfer is made, the spotting solvent evaporate. It has no effect on the solution whatsoever on the development. It is a development solvent only that affects the separation. Okay. अब TLC प्लेट पे मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा होता है? What happens at the molecular level during the development of TLC plate?